हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एज यू ऑल नो कि ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ COM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਟਰਨ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 MLA ਨੇ, 117 ਸੀਟਸ ਨੇ, 117 ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, MLA ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ CM ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ BJP ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ BSP ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 18 ਸਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ MP ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ MLA ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 MLA ਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। 117 MLA ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ 92 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,
जिते हुए 20 MLA कांग्रेस, जिते हुए 3 MLA अकाली दल, जिते हुए 2 MLA बीजेपी। 92, 102, 112, 115, 117 टोटल हो गए 117 MLA। हुण सब तो ज़्यादा किहदे कोल ने? सब तो ज़्यादा हैगे ने आम आदमी पार्टी कोले। अपने इस चीज़ की भी डिस्कशन की सीगी कि या तो जिहड़ी भी पार्टी हर एक पार्टी, चाहे वह कांग्रेस आ, चाहे वह आम आदमी पार्टी है, चाहे वह अकाली दल है, चाहे वह बीजेपी है, किहड़ी मर्जी पार्टी है, वो या तो वह वोटां पैण तो पहला इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दिंदी आ कि भाई अगर असीं जिते तो साडा जिहड़ा चीफ मिनिस्टर आ पार्टिकुलर बंदा होगा। अकाली दल ने अनाउंस किया होए, आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि अगर असीं जिते तो जिहड़ा साडा सीएम आ, सीएम का चेहरा है वह भगवंत मान होगा। बीजेपी वालियां ने अनाउंसमेंट की होनी आ कि अगर असीं जिते, आप ओवरऑल इंडिया की गल करते हैं कि भाई अगर असीं जिते तो जिहड़ा साडा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है वह PM नरेंद्र मोदी होगा। ओके, बट यह जरूरी नहीं हैगा। आप फिर तो MLA आप पंजाब की ही एग्जाम्पल लैंदे आ। जो इलैक्शन होए सी इस तो पहला, एक तो इलैक्शन हुण होए ने 2022 दे विच, एक जिहड़े 2017 वाले इलैक्शन होए सीगे, 2017 दे विच आम आदमी पार्टी ने कोई भी CM फेस अनाउंस नहीं किया सीगा। उन्होंने यह सीगा कि पहला असीं कॉम्पीटिशन लड़ांगे, उस तो बाद अगर साडी सरकार बनती आ, अगर सानूं सीटां मिलदियां ने, मैजोरिटी दीयां सीटां मिलदियां ने, अगर साडी सरकार बनती आ तां असीं उस तो बाद अपना CM का जिहड़ा फेस आ वह अनाउंस कर देंगे। तो उस टाइम मे भी इस चीज़ करके उन्होंने नुकसान होया होना, इस करके उन्होंने सीटां घट आईयां सीगियां। इस बारी उन्होंने अनाउंसमेंट पहला ही करती सी इलैक्शनस तो पहला कि आम आदमी पार्टी का CM चेहरा भगवंत मान होगा। ठीक है, सुनो हुण जिहड़ा भी CM चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वह लीडर ऑफ दी पार्टी हुंदा है, लीडर ऑफ दी पार्टी हुंदा है। ते जदों पार्लीमेंट दे विच सारा सिस्टम बैठ जाता है, जो सारे बंदे आ जाते हैं, जो सारा सिस्टम हो जाता है, इसे बंदे नूं हैड ऑफ दी गवर्नमेंट कहा जाता है, सरकार दा हैड कहा जाता है। किनू कहा जाऊगा? अगर पूछा जा रहा स्टेट लेवल का तो CM हैड ऑफ दी स्टेट होगा, सॉरी हैड ऑफ दी गवर्नमेंट होगा, हैड ऑफ दी स्टेट गवर्नर होंदा है। इसे तरीके नाल अगर गल हो रही है पार्लीमेंट लेवल की तो हैड ऑफ दी गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस टाइम हैड ऑफ दी गवर्नमेंट कौन आ? नरेंद्र मोदी, साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हैड ऑफ दी गवर्नमेंट ने। अंडरस्टैंड? तो हैड ऑफ दी स्टेट कौन होगा? इत्थे स्टेट का मतलब नेशन। हैड ऑफ दी नेशन कौन होगा? हैड ऑफ दी नेशन होंदा है गाइज प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन आ साडा? मैनू कमेंट करके दसो। हुणे चेंज होया पिछले कुछ एक महीनों के विच, मतलब पिछले दिनों के विच चेंज होया है साडा जिहड़ा प्रेजिडेंट आ। सो मैनू कमेंट करके दसो कि साडा इंडिया का प्रेजिडेंट कौन आ, कदों अपॉइंट होया है, कदों बनया है वो। ठीक है, सुनो जिहड़ा भी लीडर ऑफ दी पार्टी होगा, या मतलब जिहड़ी भी जित्ती हुई सरकार हो, जित्ती हुई पार्टी होगी, जिहड़ी पार्टी सरकार बनाऊगी, अगर तो इलैक्शन हो रहे ने लोक सभा के तो प्रेजिडेंट, अगर इलैक्शन हो रहे हैं विधान सभा के तो गवर्नर, उस जित्ती हुई पार्टी के लीडर नूं यह चीज़ ऑफर करूगा कि भाई अपनी कौंसल ऑफ मिनिस्टर बना ला, मैंने तेनों कसम चुकाउणी आ, प्लस तेरे जिहड़े कौंसल ऑफ मिनिस्टर के बंदे होणगे मैंने उन्होंने कसम चुकाउणी आ। तुसीं देखिया होएगा पिछे जे अपने CM भगवंत मान ने जिहड़े, उन्होंने जो ओथ सैरेमनी हुई सी, सिर्फ उन्होंने ही ओथ सैरेमनी की सी, क्योंकि उन्होंने हले तक कौंसल ऑफ मिनिस्टर चूज नहीं की सी।
ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़े वास्ते थोड़ा जिहा कन्फ्यूजिंग हो जाऊगा, आप इहनूं बहुत ही सिंपलीफाई करते हैं। सीधी जी गल, सीधी जी भाषा तुसीं आम जी भाषा दे विच सीधी जी गल सुनो, गल इन्नी क कि पार्लीमेंट दे विच बंदे पहुंचे या लैजिसलेटिव असैंबली दे जिते हुए बंदे पहुंचे, उन्हां दे विचों जिहड़ा सीएम होऊगा उहने अपनी कौंसल ऑफ मिनिस्टर चूज करनी होगी। सीएम या फिर पीएम, इन्हां ने अपनी कौंसल ऑफ मिनिस्टर चूज करनी होगी। कौंसल ऑफ मिनिस्टर आम जी भाषा दे विच एक सीएम या पीएम दियां आपां कह सकते हैं कि सज्जियां खब्बियां बाहां हुंदे ने, मतलब जिन्ने भी काम हुंदे ने, जिन्ने भी काम होणगे उन्हां सारियां दी जिम्मेवारी कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स ते हुंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੀਐਮ ਔਰ ਪੀਐਮ। डिपेंड करता कि कौंसल ऑफ मिनिस्टर कितने दी आ, स्टेट दी आ या सेंटर दी आ। अपने आप समझ लिया करो यार, हुण तो मैंने बहुत बार रिपीट करती है चीज़, ठीक है। कौंसल ऑफ मिनिस्टर तुसीं सुनिया होगा कि जी पंजाब दा एजुकेशन मिनिस्टर कौन आ, पंजाब दा फाइनांस मिनिस्टर कौन आ, पंजाब दा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन आ, इस तरीके नाल इंडिया दा एजुकेशन मिनिस्टर कौन आ, इंडिया दा फाइनांस मिनिस्टर कौन आ, इंडिया दा होम मिनिस्टर कौन आ। मतलब इस जिन्नियां भी चीज़ां ने, जिन्ने भी मिनिस्टर ने अलग अलग, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनांस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, या फिर होम एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट नाल रिलेटेड मिनिस्टर्स हो गए, मतलब जिन्ने भी मिनिस्टर्स ने ये सारे दे सारे कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स होंदी है। इन्हां नूं असीं कौंसल ऑफ मिनिस्टर कहने आ। अंडरस्टैंड? अगे सुनो, जिहड़ी ये कौंसल ऑफ मिनिस्टर आ, ये अगे गाइस डिवाइड हुंदी आ 3 पार्ट्स दे विच। कौंसल ऑफ मिनिस्टर अगे डिवाइड होंदी आ 3 पार्ट्स दे विच। पहले नूं असीं कहने आ कैबिनेट मिनिस्टर, सुनिया होगा तुसीं, बहुत बार सुनिया होगा। पहले नूं असीं कहने आ कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरी हुंदी आ साडी मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। ते जिहड़ी तीसरी कैटेगरी हुंदी आ वो हुंदी आ डेप्टी मिनिस्टर्स। डेप्टी मिनिस्टर्स, ये 3 तरह के जिहड़े मिनिस्टर्स ने, ये कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स होंदे ने। हुण इत्थे एक चीज़ का ध्यान रखियो, जिहड़ी तुहाडे वास्ते इंपोर्टेंट आ चीज़, वो यह आ कि 91st अमेंडमेंट हुई सी 2003 दे विच। 2003 दे विच एक 91 नंबर वाली अमेंडमेंट हुई सी। वो अमेंडमेंट की कह रही है? वो अमेंडमेंट कह रही है कि कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच एक सीएम या पीएम 15% तो ज़्यादा मैंबर नहीं रख सकता। कौंसल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि 3 मिनिस्टर मिला के टोटल दा 15% तो ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल साडे पंजाब दे विच हैगे ने 117 टोटल मैंबर, 100 का 15% 15 बन गया, 17 का 15% ऑलमोस्ट आप 2 या 3 मन के चल पैंदे। कहने का मतलब अगर आप राउंड फिगर भी गल करिए तो कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच अपने पंजाब दे विच 18 तो वध बंदे नहीं हो सकते। अपने पंजाब की कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच 18 तो ज़्यादा नहीं हो सकते। स्ट्रेंथ कितनी रख सकते हो तुसीं? टोटल की कितनी रख सकते हो? 15%। उस तरीके आप गल करते हैं इंडिया लैवल पर अपने को किन्ने मैंबर ने टोटल? अपने को हैगे ने 543 मैंबर, ठीक है। 543 का तुसीं 100 पहले 100 का 15% 15 हो गया, दूसरे 100 का 15% 15 हो गया, तीसरे 100 का 15% 15 हो गया, चौथे 100 का 15% 15 हो गया, पंजवें 100 का 15% हो गया 15। टोटल हो गए 15 30 45 60 75 प्लस 43 का 15% कितना होगा? चलो आप इनू आसानी नाल समझण वास्ते इनू राउंड फिगर कर दिंदे आ। 50 है जी, इत्थे मन लगे चलो, इत्थे 50 है। 50 का 15% कितना होगा? 7.5। आप 7 बंदे होर ऐड कर लेंगे। 75 प्लस 7 इक्वल टू 82। लगभग आप मन के चलो कि 80 बंदे ने। आप राउंड फिगर गल करते हैं, मतलब कि गिनती एक अद्धे बंदे इधर उधर हो सकती है। आप राउंड फिगर गल करते हैं कि 80 तो ज़्यादा पार्लीमेंट दे विच 80 तो ज़्यादा जिहड़े मैंबर ने वो कौंसल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं हो सकते। एक प्राइम मिनिस्टर
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ 15%, ਇਹ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ जीएसटी ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਅ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। मतलब सब तो पहली डिस्कशन कित्थे हो रही है? इत्थे हो रही है। इस करके मैंने कहा सीगा कि अगर असीं इन्हां नूं सज्जियां खब्बियां बाहां कह दईए ना PM दियां तां शायद कोई गलत नहीं हैगा। ठीक है, इन्हां ने जो भी डिसीजन लिया यह भेजते हैं प्रेजिडेंट कोले कि भाई आए करके असीं फैसला ले लिया तो हुण साइन कर दे, पास कर दे इहनूं ते अग्गों प्रेजिडेंट जी उहनूं पास कर दिंदे ने। समझ आ गया? अगली चीज़ आता है कि कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब एक नॉर्मल गल कर रहे हैं, इस तो बाद बाकायदा हाउस दे विच पास वगैरह होंदा है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की जिहड़ी स्टार्टिंग है, जिहड़ी जड़ वो आ है, इत्थों शुरू हो सारा कुछ। एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनांस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अलग अलग जिन्ने भी मिनिस्टर बनते हैं वो सारे इत्थों ने। अगली चीज़ सुनो, अगे तुहाडे कोल आ रहे हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੈਟਸ ਆਲ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ या तो कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दिता जा सकता है, जहां तक कोई इंडिपेंडेंट चार्ज दिता जा सकता। फॉर एग्जांपल वीमेंस दी वेलफेयर का चार्ज देता जी, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ का चार्ज देता जी, OBC SC ST का चार्ज देता, जंगलों रिलेटेड जो एक्ट बनते हैं उन्होंने चार्ज देता। किसी भी चीज़ का इंडिपेंडेंट चार्ज दिता जा सकता है। या फिर अगर चार्ज नहीं दिता, हो सकता कि ये वाले मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स नूं असिस्ट करन, उन्होंने असिस्टेंट बनन, उन्होंने हेल्प करन, दोनों चो एक भी काम हो सकता है। इत्थे इस चीज़ का ख्याल रखियो कि जिन्ने भी मिनिस्टर ने यह कैबिनेट मीटिंग्स जिहड़ियां कैबिनेट मिनिस्टर्स दियां मीटिंग हुंदियां ने उहदे विच पार्टिसिपेट नहीं करते। यह उदों ही पार्टिसिपेट करनगे जदों इन्हां नूं इनवाइट किया जाऊगा, स्पैशली इवन दे आर स्पैशली इनवाइटड। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਤੀਸਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। कैबिनेट मिनिस्टर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब तो ज़्यादा अहम, सब तो ज़्यादा खास है। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट करके दस दो, आप फिर तो समझा देंगे, कोई मसला नहीं है। अगली चीज़ सुनो, अगली चीज़ आपने पढ़नी है कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच CM या PM दियां पावर्स। इत्थे बच्चे की होगा, इत्थे होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का या एक चीफ मिनिस्टर का फॉर एग्जाम्पल उन्हें किसी को भी दिल करता कि मैंने इस पार्टिकुलर बंदे नूं
इस वाली पोस्ट ते रखना। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी CM ने ए नाम का बंदा है, ए नाम के बंदे नूं एक चार्ज देता कि भाई तू अज तो इस चीज़ का मिनिस्टर आ, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्टर। बी नाम का बंदा है, इनू फाइनांस मिनिस्टर लगाता। सी नाम का बंदा है, इनू एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगाता, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हुण सवेरे फैसला ले लिया, आज जी भी लिस्ट आ यह भेजती प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट को, प्रेजिडेंट ने मोहर लगाई, पास की कि हाँ जी अज तो आह वाले बंदे ने जोड़े इस चीज़ के मिनिस्टर ने। अगले दिन यदि सलाह बदल गई कि नहीं यार एवं फैसला लिता गया, मैं नहीं तेनों बनाता है, तू इदा करो जोड़ा बी आ उन्होंने तुसी एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, जोड़ा ए आ उन्होंने तुसी फाइनांस मिनिस्टर बना दो। यदि सिंपल जी एग्जाम्पल ले सकते हो तुसी, स्टार्टिंग के विच जो अपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनी सी पंजाब के विच, स्टार्टिंग के विच एजुकेशन मिनिस्टर सीगा मीत हेयर, जो थोड़े ध्यान च होवे। स्टार्टिंग के विच जो सरकार बनी सी एजुकेशन मिनिस्टर सीगा मीत हेयर, बट अजकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन आ? अजकल एजुकेशन मिनिस्टर हैगा हरजोत सिंह बैंस। तो इत्थे सरकार तो नहीं बदली, MLA उही ने, प्रधानमंत्री का या फिर क्योंकि अपने पंजाब का CM आ, CM का जी किया, दिल किया कि नहीं यार तेरे तो काम वधिया नहीं होंदा, या तेनों अपने कोई होर जिम्मेवारी देनी है, इसलिए तू आह वाली पोस्ट रहन दे, मेरा जी करता मैं किसी होर बंदे नूं प्राइम मिनिस्टर, मैं किसी होर बंदे नूं एजुकेशन मिनिस्टर बना देवां। पहला एजुकेशन मिनिस्टर ए सीगा, फॉर एग्जाम्पल मीत हेयर सीगा एजुकेशन मिनिस्टर, बट हुण उहदा दिल किया कि नहीं यार आपां बी नूं बनाउणे आ एजुकेशन मिनिस्टर, हरजोत सिंह बैंस नूं एजुकेशन मिनिस्टर बनाता। कहने का मतलब टोटल किहदी मर्जी चलूगी इत्थे, किनू किहड़ा मिनिस्टर बनाउणा है, किनू किहड़ी मिनिस्टरशिप तो हटाउणा है, किनू सदा वास्ते छुट्टी ते भेजना है, किहदी मर्जी चलूगी। वड्डे इलैक्शन ने पार्लीमेंट के इलैक्शन ने प्राइम मिनिस्टर, छोटे इलैक्शन ने स्टेट लेवल के इलैक्शन ने चीफ मिनिस्टर। अंडरस्टैंड। अगली चीज़ इत्थे तो इन्होंने ओहदे चेंज करते जी, इनू करता उन्होंने वो करता, चेंज करते आपस च। मान लो बी परसन नूं असीं कुछ बनाउणा ही नहीं हैगा, गलती नाल बन गया सीगा कि भी जिहड़ा फाइनांस मिनिस्टर आ तुसीं डी नूं लाओ भाई, डी नूं फाइनांस मिनिस्टर लगाउणा, बी दा गलती नाल लग गया सीगा, ला सकदे हो। CM दी मर्जी आ, PM दी मर्जी आ, वो कुछ मर्जी करे। अगली चीज़ हुण सवाल यह आ कि इस कंप्लीट जिहड़ा अपने गाह पाया है, इस गाह दे विच मेन पावर कौन आ, कौन बना रहा? CM या PM सारा कुछ बना रहा है। कौंसल ऑफ मिनिस्टर किहदे सिर ते खड़ी आ? कौंसल ऑफ मिनिस्टर नूं किहने बनाया है? सवाल यह है। कौंसल ऑफ मिनिस्टर नूं प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, या फिर स्टेट लेवल ते कौंसल ऑफ मिनिस्टर नूं चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री ने बनाया। सुनो, मान लो CM या PM रिजाइन कर जाए कि यार मैं तो नहीं है सिस्टम जहाँ सांभिया जाता है, रोज़ कोई ना कोई पंगा भाई रख दो, मैं कर रहा रिजाइन, मैं चलिया छुट्टी ते। जिवें कि चन्नी सरकार तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CMशिप तो रिजाइन किया सी कि मैं कर रहा रिजाइन, मैं चलिया घर नूं, मैं कला MLA, मैं तो नहीं है थोड़ा टेंशन जी लेती जाती, रोज़ ही कोई ना कोई लड़ाई जी करके बह जाते, रोज़ ही लांबे मैं तो नहीं सुने जाते, आ अपने हथ खड़े ने, मैं नहीं करता। मतलब किसी भी एक रीजन करके रिजाइन करता, CMशिप तो PM शिप तो किसी भी एक रीजन करके रिजाइन करता, नाल दी नाल सारी दी सारी कौंसल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस्ड, कैंसल। बनाई किने सीगी? जिस बंदे ने बनाई सीगी, जो तो वही नहीं रहा तो फिर कौंसल ऑफ मिनिस्टर की करूगी? बाया चांस किसी भी एक रीजन करके इस बंदे की डेथ हो गई, तो सारी दी सारी कौंसल ऑफ मिनिस्टर खत्म। सिंपल जी भाषा दे विच कि कौंसल ऑफ मिनिस्टर नूं बनाउण वाला CM या PM हुंदा। किसी भी रीजन करके CM या PM की जिहड़ी कुर्सी है वो खाली हो गई, किसी भी रीजन करके उसकी डेथ करके उसकी रिजाइन करके किसी भी रीजन करके उसकी कुर्सी खाली हो गई, उसकी डेजिग्नेशन खाली हो गई, नाल दी नाल कौंसल ऑफ मिनिस्टर खत्म। रेजिग्नेशन रीजन सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिजाइन किया, नाल दी नाल कौंसल ऑफ मिनिस्टर खत्म। चन्नी सरकार आई, चरणजीत सिंह चन्नी CM बनया, उन्हें अपनी नवी कौंसल ऑफ मिनिस्टर बनाई। मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं यह कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स वाला कंप्लीट टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट दे विच दस दो कि सर ओके आ गया, तरीका दस दो पढ़ाउण दा किदां दा है, समझ आ रहा सारा कुछ वो दस दो, कोई कमी पेशी आ वो दस दो। तो गुजारिश है नहीं का कि अपने नाल दियां नूं कहो
ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।